Yeah. Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. वही बात है मैं Yes. Now, let's start. Yesterday, we have studied about the plane mirror. In plane mirror, we have seen that whenever we come across the plane mirror or come in front of the plane mirror, we see that the Good afternoon, ma'am. good afternoon. Still you all are coming. अब कुछ ऑन कर दे। Yesterday, we have seen that in the first 3 classes, we discussed in this chapter light that how the plane mirror works and what are the laws on the basis of that plane mirror. So we have, now all of you please mute yourself and stop all these things playing over there. Here, we are going to start with the spherical mirror. In previous class, we have studied about the plane mirror. In the plane mirror, we have seen that there are 2 laws on which the plane mirror works. The plane mirror works. The plane mirror works on the 2 laws, on the basis of 2 laws. Okay? About the plane mirror in the previous class. Now, we are going to start with the spherical mirror. Now, children, curved mirrors can be seen in a variety of shapes, but the simple one, what we are going to discuss here is the spherical mirror. Now, one thing you might be experiencing in common experience, that when you come across a plane mirror, like your dressing mirror, then you will see that there is no change in the shape and size of the object which is placed in front of it. This we have discussed also. And that plane mirror also works on its 2 laws. Then, here we are talking about the curved surfaces. Now, we have seen these curved surfaces in so many cases. Like suppose if you go to your kitchen and you take your spoon, a bigger spoon or smaller one also, then you will see that in the spoon, you will see your faces either becoming very big, or when you see it from the other side, it is becoming very small. Changes you can, because that spoon is also acting as a polished surface, and we can call it as a mirror. But as it is in shape, so we will say that it is just similar to our spherical mirror. Now, a spherical word has derived from where? It has derived from sphere. A sphere, you all understand? Almost which is circular in shape, like your orange, guava. These all are what? Like your ball. These all are what? A shape, it is a sphere-like structure. That is a sphere. Now, it's, almost it is not circle, but it is in a shape of a sphere. Now, after that, we are coming to this topic of a spherical mirror. Then we should know that how these spherical mirrors are made. How it is, we give it a shape of a spherical mirror. Suppose for making a spherical mirror, we have to take a sphere. Now, suppose the spherical mirrors, this sphere has to be divided into 2 parts.
This spherical mirror is divided into first type, that is the concave mirror, and the second one, convex. Convex. Briefly having discussion how these spherical mirrors are made. Just some steps to make you understand. So this one, this is the spherical. मैम आपका वॉइस अच्छे से नहीं आ रहा है. Okay, wait a minute. धीरे. Okay, for this, so we have got a two types of mirror, I said, and that is the concave mirror and the convex mirror. Now in step 1, I will explain you one by one, step by step, that how this mirror is or how or not working, how is this mirror made. So first of all, as it is directly given in your book in the figure, I think that by that diagram it is not clear. So to make you understand, I have come to this steps so that you can be able to understand. What is in step 1? We take a spherical glass ball. This is your glass ball. ये आपका glass ball है. Okay? You assume that this is your glass ball. Clear? Round in shape. Then what is the second step to make that mirror? The second step is that we will cut the sphere, glass sphere into two. इसको दो भाग में हम कट कर देंगे. ठीक है? Now after that, the third step क्या है? What is the third step? The third step is that when we will cut it, we will apply a protective paint on one side of that cut part. एक cut part पर हम एक protective paint लगा देंगे. This is the third step to make this spherical mirror, and that will be done in both the halves. एक half आपका third step पे है और दूसरा आपका fourth step पे है. Okay? So we will, to make it, we will apply a protective paint which I have denoted by arrow. That will be on the, you can say, right hand side of the third sphere and left hand side of the this fourth step. Now children, one thing you look also. Suppose this is your sphere. This will make you more clear how we are going to make a convex and a concave or a spherical mirror. Suppose this is your field. When you cut it half, it will divide it into two. Then for the first one, to make a concave mirror, we will paint the outer side. This outer side coated will be with a paint. So which one will be the reflecting surface? The inner side. And to make a convex mirror, we will paint the inner side. So the reflecting surface will be your outer side. This can be very clear by taking a spoon. एक spoon ले लो. अगर आप उसका पीछे का भाग कवर कर दोगे, कलर कर दोगे, पेंट कर दोगे, तो उसके अंदर के भाग जिससे हम लोग ईच करते हैं, जिसमें थोड़ी गहराई होती है, that will be your reflecting surface. So that will act as a concave mirror. और दूसरा आपका पार्ट जो जिसमें आपको अगर टर्न अपसाइड टर्न करोगे तो दैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस विल बी फ्रॉम द अपर साइड. उसका अपर साइड से अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो दैट विल बी नोन एज योर convex. In this step 3 diagram, a concave mirror
where the reflecting surface is the inner layer. Inner layer is the reflecting surface. और एक convex mirror where the reflecting surface is the outer layer. ये हम लोग अभी these are the steps to make you clear that how the convex mirrors are made. Children, till here it is clear? यहाँ तक clear है? Okay. Yes. Then we are coming to the next one. We are going to know that how we are going to decide the terms or define the terms. To know that, I have come with some diagrams to make you understand. That is terms used in connection with spherical mirrors. These terms are given and a simple diagram is given in your book. That will not make you clear many Maharashtra. Now those who are having their phone ringing, just stop it. Hello. After that, we have got the terms used in connection with Hello, Con. talk afterwards. Please don't interrupt in between. That is not very important. Then we have got this term. First term was the center of curvature. This is your first term, center of curvature. That then to understand children, first of all you will take a sphere. एक sphere ले लीजिए ऐसे round. This will be your sphere. Now center of curvature is the center of that sphere. आपको जो center दिख रहा है, किसी भी आपको spherical surface में center दिखता है ना, तो that center of that sphere of which your convex or concave mirror is a part, that is known as center of curvature. उसी को हम center of curvature बोलेंगे, जिससे आपका spherical mirror बना हुआ है. जिस स्फीयर से आपका स्फेरिकल मिरर बनता है, उस सेंटर को ले लेंगे, जैसे कि हम डायग्राम में आपको बताए हुए हैं, और उसको किस चीज से डिनोट करेंगे? इट इज डिनोटेड बाय अ लेटर सी. उसको हम सी से डिनोट करेंगे. देन वी विल कम टू द नेक्स्ट डेफिनेशन. नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर. चिल्ड्रेन, you might be studying in your maths class that in maths class to just draw a circle. This you might be studying. So when you draw a circle, you take some radius. The bigger radius, if you will take a bigger radius, the circle which is drawn will be larger. If you will take a smaller radius, then the circle which will be drawn will be smaller. So here also, radius of curvature is also the radius of the sphere from which we are going to make the you can say spherical mirror. जिससे हम spherical mirror बनाते हैं, उस radius को, उससे उसका जो radius है, that is your r. ये डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर से लेकर पोल तक, सॉरी, उसके सरकमफ्रेंस तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं. तो उसी रेडियस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर इन टर्म ऑफ स्फेरिकल मिरर वी कॉल इट रेडियस ऑफ कर्वेचर. देन उसके बाद आ जाइए थर्ड, पोल. दिस इज योर पोल. ये पोल है. अब आपका पोल कैसे डिसाइड करोगे? हाउ विल यू डिसाइड द पोल? पोल कैसे डिसाइड होगा? लाइक जैसे आपको अगर अब यहाँ पर क्या हुआ, आप रेडियस ले लिए, आप सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिए. नाउ यू विल डिवाइड द होल सर्कल इनटू टू पार्ट. ये सर्कल जो आपने बनाया, that circle will be divided into two parts. इसको आप
सपोज दिस इज योर सर्कल, ये आपने सर्कल बना दिया, इसको आप दो भाग में डिवाइड कर दो, जस्ट डिवाइड इट बाय इनटू टू पार्ट्स। इसको यहां से लो और ऐसे दो भाग में डिवाइड करो। अब आपको स्ट्रक्चर कैसा मिलेगा, एक पार्ट ऐसा मिलेगा, दिस वन, एंड द अदर पार्ट विल बी दिस साइड। ये आपको दो पार्ट किस चीज का हो गया, दैट विल बी ऑफ द सर्कल। द सर्कल हैज बीन, और दैट स्फीयर, सर्कल या स्फीयर, स्फीयर हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब इस डिवाइडेड पार्ट का जो सेंटर है, जैसे सपोज कर लो इस पार्ट का, फर्स्ट पार्ट का, तो ये आपको हम पोल लिए हैं, ये पॉइंट पी लिए हैं, तो ये पॉइंट पी क्या है, व्हाट इज दैट पॉइंट पी, दैट पॉइंट पी इज द मिड पॉइंट ऑफ दैट डिवाइडेड सर्कल और डिवाइडेड स्फीयर। उसके मिड पार्ट को, उसके सेंट्रल पार्ट को जब वो डिवाइड हो गया स्फीयर दो भाग में, तो एक बन गया आपका कनकेव और दूसरा बन गया कन्वेक्स। तो जब कन्वेक्स या कनकेव बोलने के पहले उसके पार्ट को हम आइडेंटिफाई करेंगे और आइडेंटिफाई करके ये पता करेंगे कि उसका सेंट्रल पॉइंट कौन सा है उस कटे हुए भाग का। तो उसके सेंट्रल पार्ट को हम किस चीज से डिनोट करेंगे, पॉइंट पी से डिनोट करेंगे। क्लियर? देन कम्स योर टर्म प्रिंसिपल एक्सिस। अब आपके पास क्या क्या आ गया, नाउ आपके पास आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। These all terms will again and again come, so you have to correlate it. तो ये आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया, ये C, this C, then after that ये पोल आ गया, this pole, ये P, okay? ये आपका P आ गया पोल। अब नाउ C से P की दूरी, नाउ यू माइट डोंट गेट कंफ्यूज्ड बाय रेडियस। अब ये आपका रेडियस नहीं है, क्योंकि ये क्या है, दिस इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। और दैट आफ्टर डिवाइडिंग व्हेन दिस C part is connected with a line to a P part, P point, not part, C point is connected to a point at P, then that will be with a help of a line. ये एक लाइन से कनेक्टेड होगा। This line will be called as this principal axis, और ये principal axis हमारा बहुत ही important axis है, जिस पर कि हमारा all the rays कैसे divert होगा और किस तरह से। Ma'am, how we can select that where is center of curvature? आप सेंटर ऑफ स्फीयर लिए ना, सेंटर ऑफ स्फीयर जिससे आप उस ये मिरर को बनाए, जिसका वो पार्ट है वो मिरर, तो आपको एक यू कैन से दैट इट कैन बी एट अ डिस्टेंस डबल टू द डिस्टेंस ऑफ द फोकस। अभी हम फोकस बताए नहीं है, इसलिए अभी हम वो वर्ड नहीं बोल रहे हैं आपको। लेकिन आप कहाँ से लाए हो सेंटर ऑफ कर्वेचर? स्फीयर के सेंट्रल पॉइंट से, स्फीयर के सेंट्रल पॉइंट से आया है ना, बोलो। Yes, ma'am. तो जब Yes, हम ma'am. स्फीयर का सेंट्रल पॉइंट सपोज कर लो, ठीक है, अगर मान लो इस ये जो हम कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस आपको यहाँ दिखा रहे हैं, अगर इसको हम राउंड कर दें, सपोज कर लो ये एक डॉटेड लाइन से हम इसको राउंड बना दें, ठीक है, इसको हम राउंड कर दें ऐसे, सपोज ये अगर हम डॉटेड लाइन से इसको हम राउंड बना दें, तो ये कहीं ना कहीं ऐसे जाकर आपको एक सर्कल बनाएगा ना, या स्फीयर बनाएगा इसको ज्वाइन करते हुए। तो इसका सेंटर कौन सा होगा, यही ना होगा। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इस सर्कल का ही ना ये हाफ पार्ट, जब ये सर्कल का हाफ पार्ट है तो उसी सर्कल का सेंटर को ना हम सेंटर ऑफ कर्वेचर लेंगे। इज इट क्लियर? डोंट गेट कंफ्यूज। Yes, ma'am. कोई कटा हुआ पार्ट है, ये कटा हुआ पार्ट नहीं है, Yes, ma'am. तो हम किसी स्फीयर से ही काट के लाए हैं, ठीक है।
So that means the center point is always हमेशा उसका कोई सेंटर पॉइंट होगा. जैसे मान लो हम ये कन्वेक्स लेंस लिए यहाँ पे, तो इसका भी अगर हम सेंटर बनाना चाहें, सपोज हम एक सेंटर यहाँ बनाएं, ठीक है, ऐसे इसको हम राउंड कर देते हैं. ठीक है, इसको हम राउंड किए, ऐसे राउंड हो गया. अब इसका सेंटर एक अंदाज है ये, दिस इज जस्ट एन assumption, so it is not accurate because it is not a measurement. तो यहाँ पर इसका हम अगर हम सेंटर पॉइंट लिए हुए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक पूरा सर्कल है और इसका हाफ से हम क्या कर रहे हैं, मिरर बना रहे हैं. दिस इज द हाफ पोर्शन फ्रॉम विच वी हैव टेकन द मिरर. क्लियर? Is it clear now? Yes, ma'am. Should I move forward? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I was talking that what is the principal axis? Principal axis is the imaginary line joined between pole, ये pole और center of curvature के बीच का ये जो line है, इसको हम क्या बोलते हैं? Principal axis बोलेंगे. इसको radius अब हम नहीं बोलेंगे. Why? क्योंकि ये पूरे circumference पर आपको प्रिंसिपल एक्सिस दिखेगा. इसको हम इलैबोरेट भी कर सकते हैं. ठीक है, इसको हम नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता मैम, हमसे पूछेंगे. ठीक है, ओके ओके. देन आफ्टर दैट प्रिंसिपल एक्सिस के बाद अब हम लोग दूसरे टर्म पर आते हैं, नॉर्मल रेडियस ऑफ द स्फीयर. ये हम इसलिए लिखे हैं रेडियस ऑफ द स्फीयर, जस्ट टू डिस्क्राइब कि नॉर्मल होता क्या है. व्हाट इज द नॉर्मल? तो नॉर्मल अगर मान लो तुम स्फीयर बनाते हो, तो रेडियस, ओनली द रेडियस इज नॉट देयर, रेडियस इज डबल्ड. पूरा रेडियस आपको, मान लो रेडियस ड्रॉ करके आप एक सर्कल बना लिए इसका हाफ लेकर यहां से यहां तक, तो ये लाइन अगर आप इमेजिनरी ड्रॉ कर रहे हैं, तो दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस. रेडियस किस केस में होगा? स्फीयर के केस में होगा. लेकिन जब हम उसको मिरर बना दिए, कन्वेक्स या कनकेव, तब वो लाइन जो ड्रॉ कर दिए वो क्या हो गया उसका? व्हाट विल बी दैट लाइन? दैट लाइन विल बी कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस. नाउ Principal axis. हाँ, अब ये बताओ कि ये प्रिंसिपल एक्सिस आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक ड्रॉ कर रहे हो, तो क्या सर्कल का पूरा रेडियस, जो जितना बड़ा सर्कल है, सपोज कर लो वो हम एक आपको डॉट्स के थ्रू समझा रहे हैं, यहाँ से ऐसे, ये आपका सर्कल है ना, ये सर्कल है. तो ये जो लाइन जा रहा है यहाँ से यहाँ तक रेडियस लिए तो हाफ सर्कल बनेगा. लेकिन सर्कल बनाने के लिए हमको रेडियस क्या होगा? डबल लेना पड़ेगा, यहाँ से पूरा यहाँ तक लेना पड़ेगा, है ना. तो दिस होल रेडियस पूरा स्फीयर का, दैट इज नोन एज द नॉर्मल. पूरा रेडियस जो होगा वो आपका नॉर्मल होगा किसी भी स्फीयर का. क्लियर? और इसको हम इसलिए ड्रॉ करते हैं, दिस इज ड्रॉन बिकॉज वी डोंट नो वेयर विल द लाइट रे फॉल. हमको ये पता नहीं है कि लाइट रे किस सिचुएशन पर कहाँ पड़ेगा और वो कहाँ पर इमेज बनाएगा. तो ये अभी हम लोग देखेंगे वन बाय वन. जब हम लोग स्फेरिकल मिरर का डिफरेंट पोजीशंस देखेंगे, तब हम देखेंगे कि हमारा हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं और हमारा इमेज कहाँ बनना है. वेयर वी आर कीपिंग द ऑब्जेक्ट एंड वेयर इज द इमेज बीइंग फॉर्म्ड. दिस ऑल वी विल सी इन द next step when I will talk to you later. So then what happens when we are drawing any lens? एक लेंस अगर हम बनाते हैं तो उसमें क्या करेंगे? What we will do? First of all we will draw a semicircle which will be facing from inside, और दूसरा हम situation outside. अब ये हमेशा clear रखना, you all just make it clear in your mind कि in case of concave lens, concave mirror, not lens, sorry, ये आपको reflecting surface किस तरफ है? तो reflecting surface is in the inner side in concave and at the outer side in convex. Clear? अब आ जाओ focus. ये आपको थोड़ा सा
कॉम्प्लिकेट करेगा, लेकिन लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन। अब हमारे पास क्या है, दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, आपको हम बताए थे कन्वेक्स और कनकेव। कनकेव में रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, कहां पर होता है, इनर साइड। इनर साइड। और कन्वेक्स में रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है, आउटर साइड, आउटर साइड। अब देखो यहाँ हम कनकेव की बात कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट कनकेव। तो यहाँ पर जो ये एरो से लाइन जा रहा है, ये क्या है, व्हाट इज इट कॉल्ड, इट इज कॉल्ड एज रे। उसको क्या बोलते हैं, रे। रे का मतलब क्या हुआ, लाइट रे। कल भी हम लोग बात कर रहे थे रे का, अलग क्वेश्चन ही देखे। हाँ, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर वो फॉल करेगा। देखो एक रे यहाँ से चला और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर पहुंच गया, और वो रिफ्लेक्ट होके, इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके वो कहाँ जा रहा है, एक पॉइंट पर जा रहा है जिसको एफ बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ से रिफ्लेक्ट करके इधर मुड़ गया। दूसरा रे कहाँ से जा रहा है, फिर यहाँ से एक रे जा रहा है और वो रिफ्लेक्ट करके फिर वो भी कहाँ जा रहा है, इस पॉइंट पर मुड़ गया। तो जिस पॉइंट पर वो मुड़ के मीट कर रहा है, चिल्ड्रेन दो चीज समझ लीजिए। कल हम आपको रियल और वर्चुअल बताने की कोशिश कर रहे थे, मे बी कुछ बच्चे नहीं भी समझे होंगे इस बात को, यू माइट नॉट हैव अंडरस्टूड दैट, बट यू सी दैट दो रे, एक रे यहाँ है, दूसरा रे यहाँ है, ये दोनों रे कहाँ पर मीट कर रहा है, पॉइंट एफ पर। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे फोकस। अब बोलो कि कल जब हम बता रहे थे कि वो रे मीट करता है तो हम रियल इमेज बोलते हैं, तो यहाँ पर रे मीट कर रहा है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, इस तरह का इमेज जो बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल, वर्चुअल इमेज, रियल, वर्चुअल। क्यों, क्योंकि बोले थे कि हाँ कनकेव में रियल इमेज बनता है, कुछ केसेस है जहां नहीं भी बनता है, वो हम एक्सेप्शन आपको बताएंगे, लेकिन आप इतना समझ लो कि यहाँ पर एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है, दो रे एक दूसरे को कट कर रहा है, एक रे ऊपर से आ रहा है यहाँ से और वो मीट कर रहा है एफ पॉइंट पर, दूसरा रे नीचे से ऊपर जा रहा है और मीट कर रहा है एफ पॉइंट पर, ठीक है। दूसरा आप देख लीजिए, यहाँ देखो, अब ये समझने वाली बात है, आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है, आउटर वन, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है, रे इज ट्रैवलिंग, यहाँ से रे जाएगा और रिफ्लेक्ट करके दूसरे डायरेक्शन में मुड़ जाएगा, यहाँ से रे जाएगा और रिफ्लेक्ट करके दूसरे डायरेक्शन में मुड़ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो कि ये जो डॉटेड लाइन से हम यहाँ रे मीट करवाए हैं, तो ये क्या है, व्हाट इज दैट, दैट इज वी आर अज्यूमिंग दैट, हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि ये रे कहाँ पर मीट करेगा, फोकस पर मीट करेगा। वी आर अज्यूमिंग दैट in case of convex mirror we always assume, because in case of convex mirror we see that always virtual image, clear। तो ये बात आप ध्यान में रखिए। अभी हम क्या बता रहे थे आपको, फोकस बता रहे हैं। तो जहां पर ये दोनों रे मीट कर रहा है उसको हम फोकस बोलेंगे। तो कनकेव के केस में व्हाट विल हैपन, कनकेव, in case of concave there will be actual meeting of the rays, so that will be at focus, and that this will be an assumption, we will assume that it is meeting on point F, clear। अब देखो नेक्स्ट है the focal length। focal length क्या होता है, E पोल से लेकर F की दूरी, दोनों में पोल से लेकर F की दूरी, that is known as the focal length। The distance between the pole and the focus is known as the focal length, clear। और इसको आपको ये डायग्राम आपके बुक में दिया हुआ है, और F आपके बुक में एक और चीज दिया हुआ है, what is that, F is equal to R by 2, ये आपको दिया हुआ है, F is equal to R by 2।
दैट मीन्स व्हाट, रेडियस का हाफ होता है फोकस, फोकस रेडियस का हाफ होता है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर उसका डबल होता है। क्लियर? देन आप ये मेजरमेंट दिया हुआ है, ये दिस इज द फैक्ट। अब आपके बुक में एक एक्टिविटी है कि अगर हम कनकेव मिरर लेंगे और कनकेव मिरर को किसी फोकस पॉइंट पर हम लेकर जाएंगे तो उसका एक शार्प इमेज बनता है, बट दिस कैन बी प्रूव्ड ऑल्सो। कैसे प्रूव्ड होता है? आप एक कनकेव मिरर लो और उसको आप सनलाइट पर ले जाओ और वहां पर एक पेपर रख दो, डार्क कलर्ड पेपर, मतलब ब्लैक पेपर विच एब्जॉर्ब्स मोर लाइट, और नीचे आप उस पर मिरर से फोकस करो। जहां पर वो फोकस आएगा वहां देखोगे, चाहे तो आप कीप stick of match stick, and then you will see that match stick starts burning. इसको आपको अकेले में नहीं करना है, you don't try in alone, but when we will if we will be meeting in the school then we will try in there, but you can do it in presence of your elders. तो उसको क्या होता है, शार्प फोकस के कारण, फोकस चूंकि मीट कर जाता है दोनों लाइन, दोनों रेज, ऑल द रेज आर एक्यूमुलेटेड, एक जगह एक्यूमुलेट हो जाता है, इसलिए उसका क्या होता है, हीटिंग पावर इतना ज्यादा हो जाता है कि वो वहां पर कैच फायर कर सकता है। तो इट इज अवॉइडेड टू have the this you can say this experiment in don't try it alone, you can do it in presence of any elderly person. Then children, till here I think it is it clear to all of you? आप लोग को ये बात क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं? अब एक बार आप लोग, हाँ बोलो बोलो, tell me who was asking, any query? No, तो ठीक है। अब आप लोग now you will learn one more topic, that is laws of reflection. Laws of reflection, अब आप लोग laws of reflection by plane में पढ़े थे ना, the angle of incidence is equal to angle of reflection, the point of incidence, the point of reflection and the normal, they all lie on the same. ये आपका laws of reflection by plane। अब आपको पढ़ना है laws of reflection by spherical mirror। तो उसके लिए आपके पास 3 laws है, और ये laws, these laws are very important, ये आपको बहुत important है। What are, I am not explaining it you in words। आप एक फिगर देखो, ये आपको एक रे है, हेलो, दिस इज कनकेव लेंस एंड दिस इज योर कन्वेक्स लेंस। ये आपको एक रे है विच इज रनिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के ये पैरेलल रन कर रहा है, और यहाँ भी एक रे है कन्वेक्स के केस में भी, दिस इज ऑल्सो रनिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल है। तो द फर्स्ट रूल इज दैट, पहला रूल है कि a ray running parallel to the principal axis will pass from the focus, ये पहला रूल है, दिस इज द फर्स्ट रूल यहाँ। और इस केस में हम क्या बोलेंगे, कनकेव के केस में तो हम देख रहे हैं कि वो फोकस से होकर गुजर रहा है, बट व्हाट विल हैपन इन द केस ऑफ कन्वेक्स, we will assume that it will pass from the focus, ये assumption होगा because that is virtual, तो हमेशा virtual image बनाता है, और यहाँ हम रियली देख रहे हैं कि ये रे फोकस से होकर गुजर रहा है। तो ये पहला रे है कि when it is passing from, when a ray is parallel to the principal axis, it passes from the focus, and when a ray, here also a ray is parallel to the principal axis, we assume that it will pass from a focus. Clear? Then second rule है, यहाँ देखो, a ray which is passing from the focus will become parallel, ये parallel हो जाएगा after reflection। यहाँ भी a ray which is passing from the focus, यहाँ देखो focus पर assume कर रहे हैं कि ये pass कर रहा है, तो ये parallel हो जाएगा, this will become parallel, we will assume that it will become parallel, ठीक है। Then
थर्ड वन, थर्ड केस क्या है, थर्ड रूल क्या है? थर्ड रूल है The Bluetooth device is ready to pair. when a ray is passing from the center of curvature, तो वो retrace its path, उसी path पर वापस चला जाएगा। अगर हम assume करेंगे कि आपका ये कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, तो वो कहीं डाइवर्ट नहीं होगा, उसी पाथ पर वापस चला जाएगा। देख रहे हो दोनों तरफ से एरो है, यहाँ और यहाँ भी एरो आया है और वापस उसी तरफ चला गया है। So these are the three laws of reflection of light. Now, first law आप एक बार देखो. Again you see in your book the language which is written. The ray which is parallel to the principal axis will pass from the focus. Convex के केस में the ray which is parallel to the principal axis, we assume that it will pass from the focus. दूसरा है a ray which is passing from the focus. A ray which is passing from the focus will become parallel after reflection. यहाँ भी देखो parallel हो जा रहा है. तीसरा क्या है? What is the third rule? That a ray which passes from the center of curvature, that will again retrace. So today's topic is till this point only. If you have any question, you can put it up. आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है तो आप दीजिए. What you are not understanding? Okay. Anybody? किसी के पास कोई क्वेश्चन है? Okay, Aditi, what is your question? Aditi, please tell your question. Aditi, आप अपना क्वेश्चन बताइए. Okay. If the sound is disturbed, then you please put up your question on the WhatsApp also. You can give it over there also. और कुछ आपको पूछना है? Anybody? कोई भी बच्चे पूछ सकते हो अभी. Only 1 minute is left, so you can ask. Whatever point is